Good morning students. In EVS our chapter 11 is going on and the name of the chapter is neighbors and neighborhood. Okay, so we have read the chapter. Now we will do exercise. Book exercise we have done. Let's start hard words. So today we will write hard words of this chapter. You will write in your notebook in neat and clean way. Hard words. So number 1 is neighbors. NEIGHBOURS, neighbors. Number 2, second word is buildings. BUILDING, buildings. Number 3 is office. OFFICE, office. Number 4th word is neighborhood. NEIGHBOURHOOD, neighborhood. Number 5th word is, we will write here, number 5th word services. SERVICES, services. Number 6th word is market. MARKET, market. Number 7th, postcards. POSTCARDS, postcards. Number 8th word is, we will write here, money. MONEY, money. So these are hard words of this chapter. You will write these words in your notebook in neat and clean way. So let's revise these once again. NEIGHBOURS, neighbors. BUILDING, building. OFFICE, office. NEIGHBOURHOOD, neighborhood. SERVICES, services. MARKET, market. POSTCARDS, postcards. MONEY, money. Okay, these are the hard words that you have to write down in your notebook. Now next exercise is, we will do question answers. We will write question answers of this chapter that is given in your notebook, in your book. So we will write down here question answers. So our first question is, what is neighborhood? Question answers are given here in your book. So first question is, what is a neighborhood? What is a neighborhood? neighborhood कि neighborhood क्या होता है? neighborhood क्या होता है? वैसे हिंदी में तो हम इसको पड़ोस बोलते हैं. पड़ोस क्या होता है? आपने चैप्टर रीड किया ना. सो व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर? नेबरहुड. देखिए जल्दी लिखते हैं. द प्लेस नियर या एरिया अराउंड आवर हाउस is our neighborhood. The area around our house is our neighborhood. जो हमारे घर के आसपास का एरिया है, that is our neighborhood. So repeat once again. What is a neighborhood? Neighborhood क्या होता है? Area around our house is our neighborhood. Okay. Next question है यहाँ. Again we will do a partition line here. Question second is, who are our neighbors? Who are our neighbors? Neighbors वैसे हिंदी में neighbors कौन होते हैं? पड़ोसी. कि हमारे पड़ोसी कौन है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, है ना. तो इसको हम क्या लिखेंगे? हु आर आवर नेबर्स. नेबर्स कौन होते हैं? पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेस. पीपल PEO, people who live near our house, near
our house are our neighbors. House are our neighbors. Okay, let's repeat this question once again. Who are our neighbors? Neighbors कौन होते हैं? So answer is people who live near our house are our neighbors. वो लोग जो हमारे हाउस के पास, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, they are our neighbors. Draw partition line. Question number 3 is here. Question 3 है, what does the police do? What does the पुलिस डू? कि पुलिस का क्या काम है, पुलिस क्या करती है, क्या करती है पुलिस? हमने अपना चैप्टर रीड किया है ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशंस है उनका अलग अलग काम दे रखा है कि बैंक का क्या काम होता है, हॉस्पिटल का क्या काम होता है, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होते हैं उनका क्या काम होता है. सो पुलिस क्या करती है? पुलिस कीप आवर नेबरहुड सेफ. पुलिस कीप आवर नेबरहुड सेफ. हमारे नेबरहुड को सेफ रखती है. किससे? कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, उसमें पुलिस हमें सेफ रखती है. जैसे थीव्स से या कोई भी फाइटिंग वगैरह हो जाती है तो पुलिस हमारी हेल्प करती है उसमें. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पुलिस डू? पुलिस क्या करती है? एंड आंसर इज पुलिस कीप आवर नेबरहुड सेफ. पुलिस हमारे नेबरहुड को सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है. नाउ लास्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू यू गो टू स्टडी? वेयर डू यू गो टू स्टडी? मतलब अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया कि व्हाट इज आस्किंग, क्या पूछा जा रहा है, देन यू कैन गिव आंसर इजीली. तो क्वेश्चन का जब तक आपको मतलब समझ नहीं आएगा, आपको आंसर भी समझ नहीं आएगा. पहले हमें इसका मीनिंग समझना है. वेयर डू यू गो टू स्टडी? आप पढ़ने कहाँ जाते हो? सो अगर आपको ये पता चल गया कि इसका मीनिंग ये है तो आंसर तो बहुत सिंपल है. वी गो टू स्कूल टू स्टडी. सो हियर वी विल राइट आंसर, वी गो टू स्कूल. वी गो टू स्कूल टू स्टडी. ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे. आफ्टर दैट इसका जो असाइनमेंट दिया हुआ है, we will solve that assignment that is given on page number B56. B56 पर इसका असाइनमेंट दिया हुआ है. दिस असाइनमेंट यू विल सोल्व इन योर बुक ओनली. सो क्या दिया हुआ है इसमें? मैच द सर्विस टू द प्लेस. यहाँ कुछ सर्विस प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं. ओके, और यहाँ उनका काम दिया हुआ है कि वहां पर हम क्या करते हैं. सो नंबर 1 पर देखो पोस्ट ऑफिस, नंबर 2 है मार्केट, नंबर 3 बस स्टॉप, नंबर 4 हॉस्पिटल. और यहाँ उनके वर्क दे रखे हैं कि वहां हम किस वर्क के लिए जाते हैं. ए पर है गो टू व्हेन यू आर सिक. व्हेन यू आर सिक देन यू गो टू हॉस्पिटल. सो वी विल मैच दिस. ए को हम नंबर 4 से मैच करेंगे. नेक्स्ट है बाय अ पेंसिल. इफ यू वांट टू बाय अ पेंसिल, एक पेंसिल खरीदनी है आपको, देन टू बाय अ पेंसिल वेयर वी गो? वी गो टू द मार्केट. सो बाय अ पेंसिल विल मैच टू द मार्केट. थर्ड है कैच अ बस. इफ वी वॉन्ट टू कैच अ बस टू गो समवेयर, अगर कहीं जाने के लिए हमें बस पकड़नी है, देन वी विल वेट फॉर अ बस एट बस स्टैंड. बस स्टैंड पर जाएंगे हम, बस स्टॉप पर. लास्ट है बाय अ पोस्ट कार्ड. अगर हमें पोस्ट कार्ड परचेज करना है, खरीदना है, देन वी गो टू पोस्ट ऑफिस. हम पोस्ट ऑफिस में जाएंगे. सो इस तरह से आपको इन बिल्डिंग्स को इनके वर्क से मैच करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टिक द ओड वन आउट. ये मैं आपको रीड करके बताऊंगी. ओड वन आउट क्या होता है? एक ग्रुप दिया होता है वर्ड्स का, तो उस ग्रुप में जो वर्ड उन सबसे अलग है
उस ग्रुप से जो सबसे अलग है वो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स सी हियर. टीचर, बुक्स, बेड, बैग. सो विच वर्ड इज ओड हियर? बेड, because teacher, books or bag, these things related to school. And bed is different thing. Bed is odd word here na, so tick on this word. Next है train, fire engine, fireman, fire hose pipe. तो यहाँ ये देखो जहाँ फायर लगा हुआ है वो तो सारी थिंग्स फायर ब्रिगेड या फायर स्टेशन से रिलेटेड है ना. एंड ट्रेन इज डिफरेंट थिंग, सो ट्रेन वर्ड इज ओड हेयर, सो वी विल टिक हेयर. नेक्स्ट है डॉक्टर, फ्लावर्स, नर्स, मेडिसिन्स. ये तो बहुत इजी है. जब आप देखो डॉक्टर, फ्लावर्स, मेडिसिन और नर्स. डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन्स, these words related to a hospital. And flowers, flower is different word here, so flower is odd word here. Okay, next है swings, spoon, bench, trees. Swings, bench, trees, these things we can see in a park. And spoon is different thing here, so we will circle, so sorry, tick on this. Next है नेम द फॉलोइंग इन अ नेबरहुड. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. वन प्लेस का नाम लिखना है. वन वर्ड आंसर है ये. इनका आपको इनके सामने नेम लिखना है. जैसे आई एम गोइंग टू राइट हेयर ओनली आंसर्स. वर्ड्स आर गिवन इन योर बुक ना, सेंटेंसेस आर गिवन इन योर बुक, सो नंबर वाइज आई विल राइट डाउन ओनली आंसर्स. नंबर 1 दिया हुआ है अ फ्लैग ऑफ वर्शिप. वर्शिप की जगह क्या होती है? टेम्पल. सो TEMPLE. नंबर 1 का आंसर होगा टेम्पल. नंबर 2 है अ प्लेस टू बाय थिंग्स ऑफ डेली नीड्स. डेली नीड्स मीन्स डेली की जो हमारी जरूरतें हैं उसकी थिंग्स हम कहाँ से खरीदते हैं? वी क्लोथ्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वी बाय फ्रॉम मार्केट. सो सेकंड का आंसर होगा MARKET, मार्केट. नंबर 3 है अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक अ बस. इफ वी वॉन्ट टू गो समवेयर, सो फ्रॉम वेयर वी विल टेक बस. अगर हमें कहीं जाना है तो हम बस कहां से पकड़ेंगे? एट बस स्टॉप. सो थर्ड इज बस स्टॉप. नंबर 4 इज अ प्लेस वेयर फायर फाइटर्स वर्क. फायर फाइटर्स कौन होते हैं? जो आग बुझाने वाले हैं. वो कहाँ वर्क करते हैं? फायर स्टेशन. आंसर इज फायर स्टेशन. ओके. एंड लास्ट नंबर 5 इज अ रूम इन स्कूल वेयर वी सिट एंड स्टडी. स्कूल में बहुत सारे रूम होते हैं, बट विच इज द रूम वेयर वी सिट एंड स्टडी. उस रूम को हम क्या कहेंगे जहां हम बैठकर स्टडी करते हैं? दैट रूम इज कॉल्ड क्लासरूम. क्लासरूम, जिसको इन दिनों आप सब मिस कर रहे हो, राइट? यू ऑल आर मिसिंग योर क्लासरूम ना. ओके, सो ये तो हो गए हमारे वन वर्ड आंसर्स. उसके बाद जो डी एक्सरसाइज है हमारी, डी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? यहां कुछ मिसिंग लेटर्स हैं. You have to fill the missing letters to complete the word. So let's see. Number 1 है L dash BR dash RY. So ये क्या वर्ड बनेगा? LIBRARY, लाइब्रेरी. नंबर 2 है C dash N T dash N. This word is canteen. CANTEEN. कैंटीन होती है ना स्कूल में लंच करने के लिए. नेक्स्ट है M dash S dash C R dash M. This is music room. MUSIC, music. ROON, room. नेक्स्ट नंबर 4 है यहां D dash N dash N G R dash M.
and this is dining room, DININGROOM, dining room, where we take our meal, जहां हम खाना खाते हैं. एंड नंबर 5 है -FFCE. दैट वर्ड इज, सॉरी यहाँ ई नहीं है, यहाँ भी डैश है. ऑफिस, OFFICE, ऑफिस. ओके. नंबर 6 है -N-FRM और लास्ट में है SH-P. दिस वर्ड इज यूनिफॉर्म शॉप. यूनिफॉर्म शॉप, फ्रॉम वेयर we buy our uniform. So these are the missing letters. You have to fill in these dashes to make complete word. Okay, ये तो हो गया हमारा D एक्सरसाइज. अब जो E एक्सरसाइज है हमारा, E एक्सरसाइज क्या है देखिए. राइट डाउन द फॉलोइंग. यहाँ कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. नंबर 1 है द नेम ऑफ माई स्कूल इज. डू यू नो योर स्कूल नेम? अभी आप घर से स्टडी कर रहे हो, बट डू यू नो योर स्कूल नेम ना, और यू फॉरगॉट, भूल तो नहीं गए हो? सो यू विल राइट डाउन हेयर योर स्कूल नेम इज राठ इंटरनेशनल स्कूल. दैट इज रिटन RIS ऑल्सो इन शॉर्ट. शॉर्ट में हम अपने स्कूल का RIS भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल. आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनका नाम क्या है? आई एम गोइंग टू राइट हियर मिस्टर अरविंद त्रिपाठी. मिस्टर अरविंद त्रिपाठी इज योर स्कूल प्रिंसिपल. अभी आप स्कूल गए नहीं हो, सो आई थिंक आप भूल गए होंगे अपने प्रिंसिपल सर का नाम. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर योर स्कूल प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर अरविंद त्रिपाठी. नेक्स्ट है थर्ड माई क्लास टीचर नेम. माई क्लास टीचर्स नेम इज माई नेम इज मिसेस सुनीता यादव. मिसेस सुनीता यादव. एंड रिमेम्बर वन थिंग, वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट एनी नेम, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है. जो भी हम नाम लिखने जा रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर, चाहे वो आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो, किसी का भी नाम हो, नाम का फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होता है. ओके. लास्ट है हमारा माई फेवरेट सब्जेक्ट. विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? हाउ डू आई नो? हियर यू विल राइट योर सेल्फ. यहाँ आपको खुद लिखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. ओके. ये तो हो गया हमारा E एक्सरसाइज. नेक्स्ट है हमारा F एक्सरसाइज. टिक द एक्टिविटीज यू डू एट स्कूल. यहाँ आपको ये बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है. फाइटिंग, जूडो कराटे, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रिकेट. विच एक्टिविटीज यू डू इन योर स्कूल? आप इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने स्कूल में करते हो? यू हैव टू टिक दैट एक्टिविटी. ओके. So do this practice assignment and question answers in your notebook in neat and clean way. Okay. Thank you.